Hello students, this is online classes for geography class 7 and chapter 2. So we will be reading about atmosphere. So what is atmosphere? Atmosphere is basically layer of gases surrounding our planet. So that's what atmosphere is. So it's a mixture of gases that forms a layer surrounding the earth. The atmosphere is held in place by the gravitational force of our planet. So what is gravitational force? Force that attracts any two objects with mass. जो भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है वो जैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल होता है तो वो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ क्या बोला है? द एटमोसफियर इज हेल्ड इन प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ आवर प्लानट. इट फॉर्म्स द वाइटल गैसियस realm of the earth. Though the atmosphere extends between 15,000 km above the earth's surface, 99% of its mass lies within a height of 32 km from the ground. So what it says is, suppose this is the earth's surface, so though it's about 1500 km above the earth's surface, so 99% of it 99% of its mass lies within a height of 32 km from the ground. So this is suppose the ground, so 32 kilometers from the ground, 99% of the atmosphere is, as atmospheric mass is present in this area only. So that's why whatever other masses are above that compresses this, and here near the ground you will find more density. So that's what next line is it's going to explain. This is because the density of the atmosphere is greater in the lower layers as the upper layer rests on them and compress them into a dense mass. So upper layer, because of that it rests on the lower layer, so that's why it compresses and become dense mass. In near the ground it will be dense mass as compared to upper layer. Then next comes to composition of the atmosphere. So here we will see that what atmosphere consists of. So mainly it consists of nitrogen is abundant in the atmosphere. It comprises about 78% of the total volume of atmosphere. So as you can see in this figure, nitrogen, it's mainly atmosphere is composed of nitrogen, which is 78%. Other than that you can find oxygen, which is 21%, and remaining 1% is other gases. What are other gases? That is carbon dioxide, hydrogen, helium, ozone, argon and others, that is 1% only. So in atmosphere the composition of atmosphere is nitrogen is 78%, oxygen is 21% and remaining is 1% of gases, that is carbon dioxide, hydrogen, helium, ozone, argon and others. In its lower layers of atmosphere contains various amount of water vapors. So atmosphere in its lower layer it contains various amount of water vapor and also suspended particles. तो लोअर लेयर ऑफ एटमोसफियर में क्या हम लोग को पाया जाता है? ज़्यादातर वाटर वेपर एंड सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स. So what is suspended solid particles? These are small solid particles which remain in suspension, such as dust, salt and pollen grain. So these suspended solid particles and water vapor कहाँ पाया जाता है? लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफियर में. Then next move on to structure of the atmosphere. So in structure of the atmosphere, कैसे उसका एटमोसफियर का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर क्या क्या हम लोग को पाया जाता है? कंपोजिशन कि किस चीज़ से बना हुआ है एटमोसफियर. देन टेम्परेचर, उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर में क्या क्या मेनली होता है? कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई. So there are 5 distinct layers of the atmosphere. So basically atmosphere consists of 5 layers.
सो एक एक करके हम लोग लेयर पढ़ेंगे. दो देयर इज़ नो क्लियर बाउंड्री सेपरेटिंग वन लेयर फ्रॉम द अदर, ईच लेयर इज़ यूनिकली आइडेंटिफेबल. So how can we find out? There are no separate boundaries, but due to the characteristics and structure and composition and temperature, density, etc., we can distinguish into 5 layers of atmosphere. The layers vary in thickness and are found in different heights. तो लेयर का क्या होता है, थिकनेस वेरी होता है एंड हाइट के हिसाब से लेयर सब अलग अलग टाइप के होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो मेन बेस पॉइंट हम लोग लेंगे सरफेस ऑफ द, सपोज ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये ट्रोपोस्फियर है, फिर ये दूसरा और एक लेयर ऑफ द अर्थ है, ऐसे करके हम लोग को डिस्टेंस, हाइट, डेंसिटी ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके. देन नाउ फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फियर. So troposphere, it is the lowest layer of the atmosphere is known as troposphere. तो सबसे lowest layer of atmosphere है उसको क्या बोलते हैं, troposphere. तो ये सबसे पहले आता है, first layer of the atmosphere is troposphere. So when you see this figure here, earth atmosphere, यहाँ से हम लोग देखेंगे first layer जो कि 0 से 8 किलोमीटर्स आता है, ये इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर फ्रॉम अर्थ सरफेस. सो दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर. द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म एज इट्स अपर लिमिट इज हायर 14 किलोमीटर अबव द इक्वेटर देन अबव द टू पोल्स. तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस द हाइट इज 8 फ्रॉम 0 to 8 kilometers. It is the dense layer containing 75% of the total mass of the atmosphere. पूरा टोटल मास आउट ऑफ 100 में से 75% टोटल मास कहाँ रहता है, ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है. इट इज़ द डेंस लेयर ऑफ द एटमोस्फियर. दिस लेयर कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ. वॉट एवर एयर वी ब्रीथ इज फाउंड इन द लेयर कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर. इट हैज़ almost all the dust particles and water vapor present in the atmosphere. ज़्यादातर ट्रोपोस्फियर में क्या पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर. ऑल चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस इन्वॉल्विंग क्लाउड्स, रेन, स्नो, फॉग एंड स्टॉर्म ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर में ही हमेशा क्या पाया जाता है, वेदर कंडीशंस चेंजेस, जैसे क्लाउड्स, रेन, स्नो, फॉल, ये सब क्या कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है. occur in the troposphere due to the presence of water vapor. वाटर वेपर के प्रेजेंस, वाटर वेपर के होने के कारण क्लाउड, रेन, स्नो, फॉग ये सब होता है कहाँ पर, ट्रोपोस्फियर में. बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज एज डेंसिटी ऑफ एयर ग्रेजुअली डिक्रीज. ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, प्रेशर उसका डिक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है. इफ़ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज the difference between troposphere and stratosphere, so there will be increase decrease of density, temperature, pressure while increase in height. अभी हम लोग यहाँ क्या इमेज में देखते हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस ये बेस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे 5 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. दैट इज़ यहाँ है ट्रोपोस्फियर, यहाँ है स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ है मेसोस्फियर, यहाँ है आइनोस्फियर और क्या है यहाँ, थर्मोस्फियर. और ये सबसे लास्ट लेयर है, इसको बोलते हैं एक्सोस्फियर. सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर. सो ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर विच इज डेंस लेयर, एंड दैट हियर व्हाट हैपन्स, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट. सो एज वी मूव along, so here height if it increases, then here temperature decreases and pressure also decreases. This layer of the atmosphere acts as a blanket protecting the earth from extreme heat. कहाँ से कहाँ का extreme heat? From the sun. Whatever heat comes, this troposphere protects. It acts as a blanket protecting the earth. It also traps terrestrial heat. Terrestrial heat, thereby keeping the earth warm during the night.
क्या होता है, एक्सेस जो हीट होता है सन से जो आता है उसको क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है उससे, और नाइट में ज़्यादा कूल नहीं हो इसलिए वो ट्रैप करता है क्या, टेरेस्ट्रियल हीट. द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मार्क्ड बाय द ट्रोपोस्फियर. सो अपर लिमिट को, ट्रोपोस्फियर के अपर लिमिट को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज, वेयर टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग विथ हाइट. टेम्परेचर decreases with height there. So now comes to stratosphere. So what are the unique features of stratosphere? Stratosphere, it is the second layer of the atmosphere. First layer was troposphere, second layer is stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere extending from the tropopause till about 50 kilometers. From earth surface to troposphere का height कितना है, 8 किलोमीटर. from earth surface किसका height हम लोग अभी देखेंगे, stratosphere का. तो stratosphere का height क्या होगा, from earth surface it is 50 kilometers from the earth surface. This layer of the atmosphere provides ideal flying conditions for aircraft. So aircraft flies in which zone, stratosphere. See, you can see in this figure. This is because absence of water vapor. क्योंकि water vapor कहाँ मोस्टली प्रेजेंस रहता है, ट्रोपोस्फियर में, और वाटर वेपर ना प्रेजेंस नहीं होने के कारण यहाँ पर दिस इज द आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस फॉर एयरक्राफ्ट. Within the stratosphere lies the layer that has rich concentration of ozone. ये स्ट्रेटोस्फियर का कंपोजिशन हम लोग क्या, यहाँ पर ओजोन पाया जाता है, एंड इज़ नोन एज, और फिर स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओजोनोस्फियर. ओजोन इज़ वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल एज इट ऑब्जर्व्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. सो मेन बेसिक फंक्शन ऑफ ओजोन इज टू absorb the ultraviolet radiations which come from the sun. This cause the temperature of this layer to increase. जैसे यहाँ अब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जैसे ही हम लोग हाइट जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और प्रेशर यहाँ डिक्रीज़ होता है. वैसे ही जैसे ही ट्रोपोपॉज पार करके यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में चले जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर और हाइट क्या होता है, दिस कॉजेस the temperature of this layer to increase. What causes, when ozone absorbs the ultraviolet rays, this causes the temperature of this layer to increase. अब यहाँ पर जाने से क्या होता है, temperature increases with height. However, excessive use of harmful chlorofluorocarbon gases is gradually depleting this ozone layer. जो ozone layer होता है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हम लोग को एक्सट्रीम हीट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ये सब से. लेकिन जब हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है रेफ्रिजरेटर से. तो जितना एक्सेस यूज़ हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर्स और ये सब, तो वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है. वो क्या होता है, ओजोन जो लेयर जो प्रोटेक्ट करता है उसको धीरे धीरे क्या करता है, डिप्लीट करता है, कम कर देता है, लीडिंग टू हेल्थ हैज़ार्ड्स. तो इससे फ्यूचर में भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन होल. तो उससे क्या हो रहा है, हेल्थ हैज़ार्ड्स ये सब होता है. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज मार्क्ड बाय द स्ट्रेटोपॉज. यहाँ जैसे अपर लिमिट इज मार्क्ड बाय ट्रोपोपॉज, हियर इन स्ट्रेटोस्फियर द अपर लिमिट इज मार्क्ड बाय स्ट्रेटोपॉज, where the temperature begins to fall with altitude again. Now if we go again furthermore to another layer of the atmosphere, then temperature again decreases with height. So that is in mesosphere. So now coming to the next layer of the atmosphere, that is mesosphere. Resting above the stratosphere and lying at a height of around 50 km to 80 km. इसका हाइट कहाँ है, इसका हाइट क्या है, 80 किलोमीटर फ्रॉम अबव द अर्थ सरफेस, एंड इसका हाइट टोटल होगा 50 to 80 किलोमीटर्स. दैट्स व्हाट इट्स सेइंग हियर. 80 kilometer from the earth's surface is the layer of middle atmosphere known as mesosphere. So now we are going to talk about mesosphere.
its height already discussed. Now moving forward to, this is the coldest atmospheric layer with temperature dipping to 90 डिग्री सेल्सियस. यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कम कम होते जाता है when the according to height, when height increases temperature decreases in this mesosphere. The temperature decreases with height throughout the layer. This layer is of vital importance as meteors slow down and burns up due to friction and frictional heat when they enter the mesosphere. अब यहाँ क्या होता है, ये लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये लेयर, जैसे ये लेयर में क्या होता है, वेदर कंडीशंस चेंज होता है, यहाँ पर आइडल फॉर फ्लाइंग कंडीशंस फॉर एयरक्राफ्ट होता है, वैसे ये लेयर क्या चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लेयर में क्या होता है, यहाँ मीटियर्स होते हैं. ये मीटियर्स क्या करते हैं, व्हाट आर मीटियर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स. They are pieces of dust and debris from space. They are nothing but pieces of dust and debris from space that burn up in Earth's atmosphere. कहाँ पर Earth's atmosphere में, mesosphere में वो burn up करते हैं. That's why this layer is important. Burn up due to friction and frictional heat. फ्रिक्शंस में जो डस्ट डेब्रिज वो सब फ्रिक्शन होता है, इसलिए उन लोग बर्न अप होते हैं व्हेन दे एंटर द मेसोस्फीयर. द मेसोपॉज मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. इसका बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोपॉज. वेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट. नाउ कम टू thermosphere or ionosphere. This layer extends to a height of around 450 km from the Earth's surface. So the height is 450 km from the Earth's surface, and the temperature here, what happens, increases with increase in height. This layer absorbs solar radiation. Which layer? Troposphere absorbs solar radiations, breaking up of molecules of atmospheric gases into electrically charged particles which are called as ions. That's why this layer is known as ionosphere. Here what happens, temperature increases with increase in height, and it is also the hottest layer in the atmosphere. Now coming to exosphere, it is the uppermost layer of the atmosphere, and which is 1000 km thick, and the atmosphere here in this layer, pressure decreases and is lowest in this layer. So this exosphere, it is composed of traces of very light gases. So it is composed of what? Traces of very light gases, that is hydrogen, helium and oxygen. So here composition is, in exosphere it is composed of hydrogen, helium and oxygen. So now moving to next, that is importance of the atmosphere. Importance of atmosphere is, why atmosphere is very important. The presence of atmosphere is one of the factors that makes life on earth possible. So now we'll be going to learn one by one points why the importance of atmosphere. The oxygen here, so the foremost important of atmosphere is, here oxygen is present so that we can breathe. Oxygen is that in the atmosphere is essential for human for respiration, while it has also carbon dioxide and nitrogen which are essential for plants. That's why it is the most important
for plants and humans. Water vapor, secondly, water vapor in the atmosphere is responsible for various forms of precipitation. So it not only has oxygen and carbon dioxide, nitrogen, which is essential for both plants and humans, but it is also responsible for precipitation due to the presence of water vapors. The third thing is, while oxygen prevents the harmful ultraviolet rays from reaching the Earth's surface. So this is the third, ozone present in the atmosphere. It protects the Earth's surface from heating up. Next is, incoming solar radiation heats up the Earth's surface. So therefore during the night and all, it's not that cool because of the solar radiation which is captured. So what captures the solar radiation? That is called greenhouse gases. These gases capture the solar radiation. What greenhouse gases, for example, carbon dioxide and water vapor, trap the terrestrial heat and makes the earth temperature livable. Otherwise it will be very cold for us to live. So that's why there is a balance between temperature increase and decrease, because they trap the heat during the night so that we can live in a proper condition. Then third point is, meteors burn up in the atmosphere before they can hit the Earth's surface. So in mesosphere, as we learned, meteors burn up, so the dust particle or debris, they collide and they burn up. So they, in the mesosphere only, they burn up and go away, so they don't have a chance to come and hit the Earth's surface. So we are protected here by meteors. Next is greenhouse effect and global warming. As you have already read in this chapter, the rays of the sun heat up the Earth's surface during the day. The Earth cool off at night by giving out the heat in the form of terrestrial radiation. क्या होता है, दिन में जो भी सन का रेस आता है तो अर्थ सरफेस में, उसमें क्या, और रात में क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है, लेकिन हम लोग को फिर भी वार्म रखता है। किस लिए? जो गैसेस है वो ट्रैप करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और हीट को, इससे हम लोग नाइट में ज़्यादा कूल नहीं होता है। Some of this heat is absorbed by the greenhouse gases, as I told earlier here. Greenhouse gases like carbon dioxide, water vapor, they trap the terrestrial heat radiations. So here some of this heat is absorbed by the greenhouse gases of the atmosphere and does not escape into our space. So what happens, as you can see in this figure, this is the sun and this are the rays. So some is observed which is useful to keep the earth warm, but others, what happens, all it is reflected by the sun. So now here what it says is, some of the heat is absorbed by the greenhouse gases. So here these are the greenhouse gases. So when sun's rays pass, some are reflected, some go back, and some are absorbed by these gases. So as this methane, carbon dioxide, water vapor and everything, as they are more in the atmosphere, they will absorb more heat. So gradually the earth will become more warm. So gradually if become more warm, then it will melt the ice caps and all, and then there will be a global warming. Global warming means globally there will be warm. So weather will become extreme warm, and there will be in future floods, melting of ice caps like that. So that is not good. If there are more greenhouse gases, it is due to human activity, we release more greenhouse gases into the atmosphere like chlorofluorocarbon, carbon dioxide and all. So that's why that is called greenhouse effect. So what is greenhouse effect? Whenever the greenhouse gases, they trap and they causes the earth to heat more, that is
greenhouse effect. So we learn from here, some of this heat is absorbed by the greenhouse gases of the atmosphere and does not escape in the outer space. So whatever heat is sun rays comes here in the form of heat, they are absorbed by these gases, and this prevent the earth from becoming excessive cold at night. This is called as greenhouse effect. So what happens, over the years the heat trapping gases called greenhouse gases have increased. As I told earlier, these gases have increased, so they will absorb more heat, thus making the planet warmer. In addition to carbon dioxide and water vapor, these gases also include methane. So what are the greenhouse gases? Carbon dioxide, water vapor, methane, nitrous oxide, ozone. So nitrous oxide, methane, carbon dioxide, water vapor, these are called as greenhouse gases. These are also there are also human made greenhouse gases such as chlorofluorocarbon and halogens, which destroy the ozone layer and are called ozone depleting substances. High concentration of these gases in the Earth's atmosphere has resulted in it being warmed up to a greater extent. जितना गर्म होना चाहिए अर्थ को in order to prevent cooling at the night, उससे ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं. ये ग्रीन हाउस गैसेस हीट रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेंगे तो दिन ब दिन क्या होता जाता है, जितना गैस ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता रहेगा हम लोग के एटमॉस्फेयर में, उतना एब्जॉर्व इन लोग करते जाएंगे गैसेस, और जितना एब्जॉर्व करेंगे उतना क्या होगा, अर्थ विल बी मोर वार्मर एंड वार्मर. सो दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इज़ नॉट गुड for the atmosphere. So that's why we don't have to we have like humanly produced also chlorofluorocarbon. So it's on our hand, we have to figure out some alternative in future so that this should not be released in the atmosphere, so that we can contribute to global warming. Causes of global warming. Certain human activities have contributed to global warming. कैसे ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हम लोग जो हमारे एक्टिविटी से, जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाता है, और जैसे हम लोग फ्रिज और ये सब यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाता है. ये सब क्या करता है, ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है. तो इससे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये कहलाता जाता है विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अमॉन्ग्स all the greenhouse gases, the significant contributor to the warming that is global warming is carbon dioxide. the main चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में. तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो भी चीज़ हम लोग बर्न करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होता है. जितना एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए उससे ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा ट्रैप करेगा हीट को और ग्लोबल वार्मिंग होगा. तो डैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. That is release in large proportion when fossil fuels such as coal, petroleum are burnt, whether it is in industries or power plants or vehicular traffic. कहाँ से रिलीज़ होता है ह्यूमन एक्टिविटी में, जैसे कोयला जलाते हैं, फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोलियम बर्न होता है, और फिर जहाँ इंडस्ट्रीज पावर प्लांट्स, यहाँ सबसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में. फिर वेहिकुलर ट्रैफिक, व्हीकल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम से. दीज चेंजेस हैव बीन नोटिस सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज़ होने लगा. व्हेन कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्टार्टेड बीइंग यूज्ड. जब कोल को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने लगे, तब से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा. लेटर फॉलोड बाय पेट्रोलियम. पहले कोल को हम लोग यूज़ करने लगा, फिर पेट्रोलियम एज ए एनर्जी यूज़ करने लगे, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होने लगा एटमॉस्फेयर में.
So that's why it is the significant contributor to the global warming. What is the significant contributor? Burning of fossil fuels like petroleum and coal, which releases carbon dioxide. Harmful emission from industries and vehicles. The second point which causes global warming is emissions from industries and vehicles. Industries not only burn fossil fuels but also emit harmful gases. इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं बर्न करने के लिए, कोल पेट्रोलियम ये सब एज ए फ्यूल देते हैं. तो क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में, प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसमें क्या होता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होता है, सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन, दैट पॉल्यूट द एयर. इससे क्या होता है, ये सब इंडस्ट्रीज़ जो भी फॉसिल फ्यूल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं टू रन देयर इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होता है. हार्मफुल गैसेस क्या क्या है, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, they pollute the air, that causes air pollution. Rapid urbanization and industrialization has increased industrial and vehicular pollution significantly. Urbanization, पहले रूरल से अर्बन करने के लिए अर्बनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री, व्हीकल्स, ये सब जब ज़्यादा होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारी जगह में इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, हर जगह में स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, तो ये सब ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसको करने लगे, पॉल्यूशन को. ये देखो इंडस्ट्रीज़ में चिमनी से यहाँ पर जा रहा है हार्मफुल गैसेस, उन लोग क्या करते थे, पहले डायरेक्टली रिलीज़ करते थे एटमॉस्फेयर, और धीरे धीरे क्या होने लगा, ये सब एयर को पॉल्यूट करने लगा. मेनली क्या कंट्रीब्यूटर था पहले, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता था ऐसे करके. तो जितना तेज़ी से इंसान बढ़ते गया, उतना जितना इंडस्ट्री खोलते गया अपना, तो उतना फॉसिल फ्यूल यूज़ होते गया, उससे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन होते गया. देन नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग. पहले क्या था, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से उससे एटमॉस्फेयर क्या, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीट ज़्यादा होने लगा अर्थ बिकॉज ऑफ द गैसेस. फिर एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री और व्हीकल में ज़्यादा गैसेस हम लोग एनवायरनमेंट में अलाउ करने लगे, तो इससे भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ. अभी नेक्स्ट किससे ग्लोबल वार्मिंग हुआ, डिफॉरेस्टेशन. व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, इट इज़ द कटिंग ऑफ ट्रीज. Forestation, that is planting of trees, deforestation, cutting of trees, and mining of ore, minerals, coals, these are called mining. जो कि अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं वो सब, कोल माइनिंग. सो ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ population, large areas under forest cover are being cleared. पॉपुलेशन जब बढ़ने लगा तो क्या होने लगा, फॉरेस्ट वो सब काटने लगे, सारे प्लांट्स वो सब काटने लगे, फॉरेस्ट कम होने लगे. टू गिव अवे सेटलमेंट, सारा डेवलपर्स, रियल स्टेट ये सब क्या करने लगे, लैंड खरीदने लगे और फिर घर बनाने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, माइनिंग करने लगे, तो इंडस्ट्री बना लगे. ये सब के लिए जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करें, फॉरेस्ट को काटने लगे. फॉरेस्ट को काट करके हम लोग क्या किए, ये सब सेटलमेंट और ये सब करने लगे. फॉरेस्ट आर ए मेजर कार्बन सिंक. फॉरेस्ट क्या करता है, बैलेंस करता है. प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है. दैट हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर. तो जैसे ही प्लांट सारा कट हो जाएंगे तो वैसे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स ही नहीं रहेंगे. प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा एनवायरनमेंट में. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा. ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा तो हीट ज़्यादा वार्म हो जाएगा. अर्थ वार्म हो गया, उसको क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग. इसलिए ये कंट्रीब्यूट करता है. फॉरेस्ट आर ए मेजर
carbon sink, and in their absence the carbon dioxide level in the atmosphere decreases, which traps heat in the atmosphere leading to global warming. Now, fourth point for global warming causes are excessive rearing of farm animals. Farm animals है, keep a large number of farm animals such as goats, sheep, buffaloes and so on also contribute to global warming. कैसे contribute करता है? When farm animals digest their food, मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. ये जब ये गोट, शीप, बफलोज ये सब क्या करते हैं, जब भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है. मीथेन प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, इनके स्टमक में, विच इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू देयर डंग, दैट इज़ कॉल्ड काउ डंग. फिर जब एक्सक्रिएट करते हैं तो काउ डंग में मीथेन रहता है. बाय रिमूविंग लार्ज सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट टू एक्सपांड फार्मलैंड, जब फॉरेस्ट को रिमूव कर दिए हम लोग फार्मलैंड करने के लिए, गोट को पालने के लिए, शीप को, ये सब करने के लिए, एंड रेजिंग फार्म एनिमल्स, ह्यूमन काइंड फर्दर डिस्टर्ब्स द डेडिकेट बैलेंस इन नेचर. तो क्या होता है, ट्रीज कट जाने से बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है नेचर का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब ज़्यादा रिलीज़ होता है, मीथेन ज़्यादा यहाँ रिलीज़ हो रहा है. तो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, दैट्स वाई इट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. द नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज फर्टिलाइजर्स. आर्टिफिशियल नाइट्रोजन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र फॉर क्रॉप्स. देखते हैं हम लोग जब भी क्रॉप में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब डालते हैं तो मेनली उनका इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन, सम ऑफ दिस नाइट्रोजन इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. ये नाइट्रोजन जब हम लोग क्रॉप में डालते हैं ताकि वहाँ पर कोई कीड़े ये सब क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करें, तो यहाँ क्या होता है, एटमॉस्फेयर में फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिलीज़ होता है. Thus, fertilizing the crops with artificial nitrogen increases the level of nitrogen oxide in the air. ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से ज़्यादा फर्टिलाइज़र क्या होता है, एनवायरनमेंट में आ जाता है, जो कि है ग्रीन हाउस गैसेस. So that's why these are the contributor of global warming. So here in this figure you can see sources of greenhouse gases. कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है फॉसिल फ्यूल बर्न करने से, इंडस्ट्री से, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डिफॉरेस्टेशन. वैसे ही मीथेन कहाँ से आता है, नेचुरल वेटलैंड, लाइफ स्टॉक वेस्ट, पैडी फील्ड्स. नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ आता है, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. वैसे ही ओजोन कहाँ से आता है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओजोन लेयर. एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है, लिक्विड कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल्स एंड फोम यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग किससे हुआ ये पता चल गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किससे हुआ. अब उसका असर क्या होता है, अर्थ और एनवायरनमेंट में. The destructive impact of global warming is observed in various spheres of life and the environment. Some of the points are outlined below. High temperatures lead to high evaporation. अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो हीट रिलीज़ हो गई है एटमॉस्फेयर और अर्थ में, तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है. इवापोरेशन रेट बढ़ जाने से पानी क्या है, जल्दी पानी नहीं रहेगा, वो इवापोरेट हो जाएगा. और क्या होगा, और ड्राई हो जाएगा, वो सॉइल ड्राई हो जाएगा, वाटर बॉडीज़ ड्राई हो जाएगा. दिस अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्शन. तो उससे क्या होगा, क्रॉप को पानी नहीं मिलेगा. सो दिस ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट्स. तो इससे क्या हो जाएगा, जहाँ क्रॉप नहीं होगा तो वहाँ पर अकाल हो जाएगा. सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Next impact of global warming is
The heat waves in summer months lead to a greater number of death. हीट ज़्यादा होने से क्या होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ होता है ड्यू टू हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक से प्रॉब्लम होता है. दे ऑल्सो कॉज द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज़. वेक्टर बोर्न डिजीज़ ज़्यादा हीट वेव्स एनवायरनमेंट में आने से वेक्टर बोर्न डिजीज़ होता है, सच एज मलेरिया एंड डेंगू एज वेल एज वाटर बोर्न डिजीज़. तो ये सब क्या आता है हम लोग को, पहले 2 पॉइंट्स ये सब क्या एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे थे, अब ये क्या कर रहा है हम लोग की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है. जैसे कि मलेरिया, डेंगू और कोलेरा, टाइफाइड ये सब होता है. फॉरेस्ट फायर्स, और एक क्या होता है, फॉरेस्ट फायर बिकम मोर फ्रीक्वेंट. फॉरेस्ट में अपने आप फायर हो जाता है क्योंकि हीट ज़्यादा हो जाने से, इसलिए भी प्रॉब्लम होता है. देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स बिकम ए कॉमन ऑकरेंस. फिर साइक्लोन ज़्यादा आने लगता है हीट ज़्यादा होने से, और रेनफॉल पैटर्न वो सब चेंज हो जाता है. कहीं कम रेनफॉल होता है, कहीं ज़्यादा रेनफॉल होता है, उससे प्रॉब्लम होता है एनवायरनमेंट में. देन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स टेकिंग प्लेस. आइसबर्ग, जहाँ पर पोलर रीजन यहाँ है, वहाँ पर आइस ये सब मेल्ट होते जाता है. मेल्ट होने से क्या है, यहाँ पोलर बियर और यहाँ के जो भी हैं उन लोग को धीरे से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और उन लोग फिर डिसअपियर हो जाते हैं. तो क्या होता है, स्पीसीज़, वेराइटी ऑफ स्पीसीज़ इकोसिस्टम में नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन लोग का एनवायरनमेंट ही नहीं रहता है. अगर ये सब, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पर आइस मेल्ट हो जाएगा तो ये कहाँ रह पाएगा, कहीं नहीं, पोलर बेयर. तो इसीलिए ये सब क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग हो जाता है क्योंकि हीट ज़्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से. बोथ परमानेंट आइस शीट इन द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स एज वेल एज स्नो कैपिंग माउंटेन्स. जो स्नो है माउंटेन्स में वो सब सारा मेल्ट होने लगता है. दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओशन. तो वाटर ओशन में ज़्यादा हो जाएगा एंड मे ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लडिंग. In this figure you can see polar ice cap are becoming thinner and melting at an alarming rate due to global warming. The loss of sea ice habitats due to climate change is the biggest threat to the survival of polar bears. आइस नहीं रहेगा तो ये सर्वाइवल इसको मुश्किल हो जाता है. हर जगह वाटर रहेगा, इसको खाना नहीं मिलेगा, कहीं जा नहीं पाएगा, फिर ये कोल्ड का इंतज़ार करता है सालों साल रह करके. ड्यू टू इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर. अब ये वाला एनवायरनमेंट में हम लोग अभी बात की, अभी क्या है, सी का टेम्परेचर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ड्यू टू इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर. सी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, सबमर्जेंस ऑफ सेवरल आइसलैंड. जो भी आइसलैंड है वो पिघल जाता है वो, तो इसलिए क्या होता है, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल लॉस हो जाता है. एंड ऑल्सो गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज. जो रेफ्यूजी जो दूसरे जगह से यहाँ जैसे बर्ड्स और ये माइग्रेंट बर्ड्स ये सब आते हैं, उन लोग के लिए रहना मुश्किल हो जाता है. ड्यू टू राइज इन ओशन टेम्परेचर कोरल लीव्स आर डिस्ट्रॉयड. कोरल रीव्स क्या होता है, जो अंदर में जो छोटा छोटा एल्गी ये सब होता है, उसको जो प्लांट्स रहते हैं वो सब कोरल रीव्स रहते हैं अंदर, जिसको क्या फ़िश खाते हैं. तो फ़िश का इकोलॉजिकल सिस्टम उनको भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है कोरल रीव्स. दिस ग्रेटली अफेक्ट द मेराइन इकोसिस्टम. तो फिश वाटर बॉडीज़ जो भी अंडर वाटर इकोसिस्टम रहता है वो इफ़ेक्ट करता है इससे. This is also predicted that more than a million species will experience loss of habitat. तो ढेर सा मिलियन स्पेसीज ऑफ वाटर लैंड स्पेसीज वो सब क्या होगा, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा. जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, फॉरेस्ट कट जाएगा तो उन लोगों को जगह नहीं मिलेगा. वैसे ही जो पानी में रह रहे थे उनका खाना ख़त्म हो जाएगा, कोरल रीफ सब मर जाएगा, तो इन लोग भी मर जाएंगे.
तो ऐसे करके क्या होता है, उन लोग का हैबिटेट लॉस में चले जाता है और ये क्या बन जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड एक्सटिंक्ट। धीरे से वो रेयर हो पाए जाते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। सो हाउ कैन वी रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग? इन ऑर्डर टू फोस्टर इक्विलिब्रियम इन आवर एनवायरनमेंट, अगर हम लोग को बैलेंस रखने के लिए क्या करना है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सब क्या था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का ये सब पॉइंट्स था। ये सबको हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है। कैसे करना है, लेट्स सी हियर। Certain measures need to be taken up worldwide. Some of these includes the following. We need to decrease emission of greenhouse gases. So greenhouse gases whatever are there in the atmosphere, we have to decrease the emission by reducing burning of fossil fuels. जो fossil fuels जो भी रहता है उसको हम लोग क्या करना है, बर्न करना बंद करना है। उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब रिलीज़ नहीं होगा एनवायरनमेंट में, और ग्रीन हाउस गैसेस कम होगा तो उतना हीट कम होगा। सो इंस्टेड ऑफ, अगर हम लोग बंद कर देंगे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम जलाना, तो इसके बदले क्या कर सकते हैं, वी हैव टू स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which can be generated again and again, such as wind, sun। ये सबसे एनर्जी निकाल करके हम लोग को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोल, पेट्रोलियम। दे आर नॉट ओनली चीप एंड abundant बट ऑल्सो नॉन पोल्यूटिंग, पॉल्यूशन भी नहीं होता इससे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। जहाँ पर काटने से ट्रीज़ का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो हम लोग को प्लांट करना है टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। वी कैन रिड्यूस एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो इससे क्या होगा, प्लांट करने से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है फिर से प्लांट ले लेगा, और फिर हम लोग का एयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि कम एब्जॉर्ब करेगा ग्लोबल वार्मिंग को। द गवर्नमेंट हैज़ distributes free saplings and organizes afforestation programs। तो अभी क्या गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पौधा सब कोई को गिफ्ट करता है ताकि तुम लगाओ। तब हम लोग क्या करेंगे, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या मेजर लिया है, इट ऑर्गेनाइजेज एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज प्रोग्राम वो करता है जहाँ पर ढेर सारे लोग प्लांट करते हैं ट्रीज़ को, जहाँ फॉरेस्ट कवर होगा, टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ट्रीज। सो हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, it is we who can bring about a change and save our planet. Our planet is going to deplete here because of global warming, greenhouse effect, pollution. So it's in our hand to make it into renewable by adopting renewable sources of energy to save our planet from disaster. So now next point is we should switch to eco-friendly cars. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, इको फ्रेंडली कार एंड गैजेट्स। फॉर एग्जांपल कार्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, से जो कार यूज़ होता है हम लोग उसको छोड़ करके जो फॉसिल फ्यूल से रन होता है जैसे कोल और पेट्रोल ये सब से रन होता है, उसको हम लोग नहीं यूज़ करके हम लोग को जो कार इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है उसको यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ लाइट बल्ब्स है उसको रिप्लेस करके CFL बल्ब्स लगाना चाहिए, बिकॉज दे कंज्यूम लेस एनर्जी। वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। अभी क्या होता है जहाँ यूज़ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर बंद कर सकते हैं, और सच एज फैन, लाइट्स, एयर कंडीशनर्स, टेलीविज़न ये सब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बंद कर सकते हैं। इससे क्या होता है हम लोग को कम एनर्जी रिक्वायर होगा जनरेशन के लिए।
The next point is efforts should be made to hasten the development of green cities. Green cities, smart cities, nowadays you can hear, that is example how we can reduce global warming. These cities are urban areas around the world striving to lessen the environmental impact of urbanization by reducing waste. सो आजकल वेस्ट क्या है, बहुत इंक्रीज़ होते जा रहा है एनवायरनमेंट में, तो इससे भी क्या होता है, मीथेन रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को. तो इसीलिए वी हैव टू रिड्यूस वेस्ट, जितना ज़रूरत है उतना खरीदना चाहिए ताकि वेस्ट जनरेट ना हो. एंड एनकरेजिंग रिसाइकलिंग जैसे प्लास्टिक, पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, ये सब क्या करते हैं, हम लोग को रीयूज़ एंड रिसाइकल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ using one time and throwing. Lowering emission level as well as reducing level of air, water and soil pollution. एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन से बचा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग. by following the 3 R's. By following the 3 R's means reduce, recycle and reuse strategy. So this strategy is very important, that is called as 3 R's, that is reduce, reuse and recycle. जो भी पहले हम लोग को चीज़ मिलता है उसको हम लोग को क्या करना है, रीयूज़ करते जाना है. जैसे कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल हम लोग को मिला है, तो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग को यूज़ करते रहना चाहिए. ये नहीं कि जब ये है तो दूसरा पेंसिल ख़रीद लो, तीसरा पेंसिल ख़रीद लो. इससे क्या होता है, हम लोग और वेस्ट क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में. तो हम लोग को क्या करना है, पहले रीयूज़ करना है. अगर रीयूज़ नहीं हो पाया तो हम लोग को पहले रिड्यूस नहीं हो पाया तो रीयूज़ करेंगे. रीयूज़ नहीं हो पाया तो फिर लास्ट क्या होगा, रिसाइकल करेंगे. जैसे प्लास्टिक, पेपर, वो क्या होता है, रिसाइकल होता है. वी कैन यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर ग्रोथ एज वेल एज सेव देम फ्रॉम द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ by using whatever resources we have in the present without compromising the future use of that resources, because in future it will be that resource will not be the same, it will go on decreasing. So that is called sustainable development. So we have to adopt sustainable development strategy. We must reduce the use of natural resources.